Hello, welcome back. This is Progress with Prachi. I'm Prachi Soni and I will be dealing with class 11th NCERT Geography, Indian Geography, that is India Physical Environment. And we are currently on chapter number 4, that is Climate chapter. We have already completed 7 parts of this chapter. This is a little huge chapter. And today we will be dealing for the upcoming portion which is left. In the last class, we were talking about the monsoon winds, monsoon winds which are coming from the southern hemisphere to northern hemisphere, then entering India and then bringing rain to Indian subcontinent, which is divided into two main branches of the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. So now, we have already dealt with the features of the monsoon winds of Arabian Sea and the features of monsoon winds of the Bay of Bengal. Today, we will be dealing with characteristics of monsoonal rainfall. Now, what are the different characteristics these rains bring with them? So, first is rainfall received from the southwest monsoon is seasonal in character. So, that is very important. The first character is that it is seasonal. So which occurs between June to September. It is seasonal. It is not a daily phenomena. It is not happening every day 24/7 365 days. It is seasonal. It is coming for 2 to 3 months or 4 months maximum, 5 months maximum. That is from June to the month of September. Next feature is about the relief and the topography. That is, the relief is physical features. Is it a plain area, a plateau area, or a mountainous area? So monsoonal rainfall largely depend करता है relief पे, topography पे, plain area कहाँ है, mountain areas कहाँ है. Mountain है अगर तो उसके जो orographic rainfall होगी, windward side पे rain होगी, leeward side पे rain नहीं होगा. So for instance, जो windward side है वेस्टर्न घाट का, उसको अराउंड 250 सेंटीमीटर का रेनफॉल मिलता है. नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल है. ईस्टर्न हिमालयाज के पास काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल है, विच इज़ बिकॉज ऑफ द रिलीफ, द टोपोग्राफी ऑफ द इंडियन लैंड. नेक्स्ट इज जितना ज़्यादा आप सी से दूर हो जाओगे, द डिस्टेंस इंक्रीजेज, द मोर द डिस्टेंस इंक्रीजेज फ्रॉम सी, यानी कि सी से आप जितना दूर हो जाओगे, जो मॉनसून होता है, जो रेनफॉल होता है, वो कम होता जाता है. सो डिक्लाइनिंग ट्रेंड होता है जैसे जैसे आप सी से दूर जाते हो. कोलकाता को 119 सेंटीमीटर की रेनफॉल मिलती है साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड में. सिमिलरली पटना को 105, इलाहाबाद को 76 एंड दिल्ली रिसीव्स 56 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी. देन देयर आर कुछ ब्रेक्स होते हैं, कुछ साइक्लोनिक डिप्रेशंस होते हैं. तो जो मॉनसून रेन्स हैं वो वेट स्पेल्स में अकर होती हैं, कुछ फ्यू डेज ड्यूरेशन का कुछ समय होता है, कुछ टाइम होता है, उसमें आती हैं. जो वेट स्पेल्स हैं वो इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस, कुछ बीच में ब्रेक्स होते हैं जहां बिल्कुल बारिश नहीं होती है, उनको हम रेनलेस इंटरवल्स या फिर ब्रेक्स भी बोलते हैं. दीज ब्रेक्स इन रेनफॉल are related to cyclonic depressions mainly formed at the head of the Bay of Bengal. Generally जो cyclonic depression Bay of Bengal में हो जाता है उसकी वजह से फॉर्म होता है. they are crossing into mainland. Besides जो frequency and intensity है in depressions की, the passage followed by them determines the spatial distribution. अलग अलग स्पेस में अलग अलग जगह में कितनी रेनफॉल कहाँ होगी, ये सब डिपेंड करता है हमारे ये डिप्रेशंस एंड ब्रेक्स की वजह से. सॉइल इरोजन होता है. जो समर रेनफॉल होती है वो इतनी ज़्यादा हैवीली होती है कि इसकी वजह से सॉइल रन ऑफ हो जाता है, सॉइल बह जाती है और इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकेरियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होती है मॉनसून रेनफॉल. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एग्रीकल्चर के केस में मॉनसून रेनफॉल्स, बिकॉज जो 3/4 जो टोटल रेन है हमारी कंट्री में वो साउथ वेस्ट मानसून, 75% जो रेनफॉल है हमारी कंट्री में वो हमें साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है. और हमारे को पता है हमारा एग्रीकल्चर कितना ज़्यादा रेनफॉल पे, रेन पे डिपेंडेंट है. तो इसीलिए एग्रेरियन इकोनॉमी के लिए साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, विच मीन्स दैट देयर आर सर्टन प्लेसेस जहाँ पे 12 सेंटीमीटर की बारिश होती है, एंड देन देयर आर सर्टन प्लेसेस जहाँ पे 250 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल आपको रिसीव होती है. सो दिस इज द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. हर जगह पे एक जैसी बारिश नहीं होती है. समटाइम्स जो द बिगनिंग ऑफ द रेन समटाइम इज कंसिडरेबली डिलेड ओवर द होल. कभी कभार ये रेन पूरी की पूरी डिले हो जाता है, 3-4 दिन का, 2-4 दिन का डिले आ जाता है.
ये भी है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। और कभी कभार अर्लियर भी आ जाती है यूजुअल से, कॉजिंग इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, अगर बारिश जल्दी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है क्रॉप्स को, और विंटर क्रॉप्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब पूरा एग्रेरियन जो हमारा पैटर्न है, कब क्रॉप डालनी है कब निकालनी है, वो पूरा तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है अगर बारिश आगे पीछे हो जाती है तो। दिस वॉज द सीजन ऑफ कमिंग मानसून, जब मानसून आ रहा था, साउथ वेस्ट मानसून, जब हमारी इंडिया को मानसून रिसीव हो रहा था। अभी रिट्रीटिंग होगा मानसून, यानी कि मानसून विंड्स वापस जाएंगी, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून की बात करेंगे हम। सो जब हम लास्ट पढ़ रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। 4 सीजन हमने पढ़े, हॉट वेदर, विंटर वेदर, द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, एंड नाउ द लास्ट सीजन इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। इस सीजन में अब विंड्स वापस जाएंगी। सो द मंथ्स जो अक्टूबर और नवंबर के महीने होते हैं इनको हम रिट्रीटिंग मानसून के महीने बोलते हैं। सितंबर के एंड तक जो साउथ वेस्ट मानसून होती है वो काफी कमजोर हो जाती है, क्योंकि जो लो प्रेशर है ट्रू ऑफ द गंगा प्लेन स्टार्ट, जो लो ITCZ की बेल्ट है, अब क्योंकि क्या हो रहा है सितंबर अक्टूबर टूवर्ड्स आप ठंडी की तरफ मूव कर रहे हो, तो ये जो लो प्रेशर बेल्ट है जो ITCZ है वो नीचे वापस से जाना शुरू कर देती है। इट स्टार्ट्स गोइंग इन द साउथ डायरेक्शन, साउथवर्ड्स मूव करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो सन की अर्थ की मूवमेंट की वजह से सन नीचे हो रहा है, तो सन के साथ साथ वो लो प्रेशर बेल्ट भी नीचे शिफ्ट हो जाती है। जो मॉनसून है अब वो वापस आना शुरू हो जाएगा, रिट्रीट करेगा वेस्टर्न राजस्थान से। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से रिट्रीटिंग शुरू हो जाती है। ये राजस्थान से विड्रॉ होता है, गुजरात से विड्रॉ होता है, वेस्टर्न गंगा प्लेन आपका है, हमारा जो आगरा और फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट वाला ये जो रीजन है, वेस्टर्न गंगा प्लेन से सेंट्रल हाईलैंड्स बाय द एंड ऑफ द मंथ, इन सब जगह से सितंबर एंड तक रिट्रीट हो जाता है। अक्टूबर के बिगनिंग में जो लो प्रेशर है वो कवर्स नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, एंड बाय अर्ली नवंबर कर्नाटका और तमिलनाडु तक रिट्रीटिंग मानसून विंड्स पहुंच जाती हैं। मिडिल ऑफ दिसंबर में द सेंटर ऑफ लो प्रेशर इज कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द पेनिनसुला, और दिसंबर के मिड में अराउंड 14 से 20 दिसंबर के बीच जो पूरी तरीके से जो हमारी लो प्रेशर बेल्ट है वो पूरी की पूरी इंडिया को छोड़ चुकी होती है, इंडियन पेनिनसुला से निकल चुकी होती है। लो प्रेशर है ही नहीं तो विंड उधर आएंगी ही नहीं, सो कंप्लीटली लीव्स द इंडियन पेनिनसुला, ITCZ बेल्ट चली जाती है नीचे। जो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है इस मार्क्ड बाय, जब रिट्रीट होगी विंड्स तो साफ क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर इंक्रीज पता है आपको। अब क्योंकि विंड देखो ना ऊपर से आ रही है विंड्स आपके वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न गंगा प्लेन से, वेस्टर्न राजस्थान से विंड्स ऊपर से आ रही है, इनमें कोई तरीके का मॉइस्चर नहीं है, ये नॉर्मलाइज नहीं करेंगी, बहुत सर्दी ठंडी विंड्स होती हैं, और ठंडी विंड्स होने की वजह से आपको तो क्लियर स्काई रहेगा और टेम्परेचर इंक्रीज होना, हाई होना, टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशंस हो जाती है। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, लैंड अभी भी थोड़ा मॉइस्ट होता है। ओनली टू द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रादर ऑपरेसिव, जो वेदर है वो काफी ऑपरेसिव हो जाता है। दिस इज कॉमनली नोन एज, इसको हम अक्टूबर हीट बोलते हैं। अक्टूबर के टाइम पे जब थोड़ी बहुत गर्मी ज्यादा हो जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट बोला जाता है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बिगिंस, और मतलब फर्स्ट वीक में बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी फर्स्ट हाफ में, यानी कि कुछ स्टार्टिंग के 14-15 दिन, उसके बाद एकदम से मर्करी गिरना शुरू करेगा। मर्करी का गिरने का मतलब टेम्परेचर एकदम से फॉल होना शुरू होता है, और आप देखोगे किस तरीके से नवंबर और दिसंबर में टेम्परेचर एकदम से रिवर्सल हो जाता है, एकदम से काफी ज्यादा सर्दी हो जाती है, टेम्परेचर फॉल्स रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया। द वेदर इन द रिट्रीटिंग मानसून ड्राई होता है नॉर्थ इंडिया में, बट रेन मिलती है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाली साइड में बारिश होती है। हेयर अक्टूबर और नवंबर रेनिएस्ट मंथ्स होते हैं ईयर के, यानी कि पूरे साल में सबसे ज्यादा बारिश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इन्हीं महीनों में, यानी कि अक्टूबर नवंबर में मिलती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स। जो वाइड स्प्रेड रेन है इस सीजन में, ये साइक्लोनिक डिप्रेशंस की वजह से ओरिजिनेट होती है, विच ओरिजिनेट ओवर अंडमान सी एंड मैनेज टू क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द सर्दर्न पेनिनसुला। तो जो हमने देखा जब वो विंड नीचे आ रही थी तो विंड ऐसे जाने की बजाय वो ऐसे घूम जाती है। वो ऐसे घूम क्यों जाती है टुवर्ड्स तमिलनाडु, एंड विंड इधर से ऊपर से राजस्थान से, यूपी से, इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही थी, बट ये घूम जाती है
कि घूम क्यों जाती है इस तरफ, दिस गेट्स इनसाइड बिकॉज ऑफ द साइक्लोनिक डिप्रेशन। जो साइक्लोन्स आपकी अंडमान सी से इस तरफ आते हैं, तो विंड जो ऐसे जानी चाहिए थी वो इसको घुमा देता है, और जिसकी वजह से विंड्स बे ऑफ बंगाल के ऊपर से मॉइस्चर लेके जाती हैं और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश करती है जाके। तो सी एंड मैनेज दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज जो हैं आपके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के, वहाँ पे टारगेट करते हैं, वहाँ पे हर साल डिस्ट्रक्शन लाते हैं। एवरी ईयर जो साइक्लोन्स हैं वहाँ पे डिजास्टर होता है, जिसकी वजह से कुछ साइक्लोन स्ट्रॉम्स वेस्ट बंगाल तक पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार को भी हिट करते हैं। A bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived in type depression, तो साइक्लोन से ही मेजर रेन होती है। Such cyclonic storms are less frequent in the Arabian Sea, और ये जो साइक्लोनिक स्ट्रॉम्स हैं ये इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है अरेबियन सी के केस में, यानी कि अरेबियन सी में ये इतना ज़्यादा रेगुलरली साइक्लोन्स नहीं आते हैं जितना आपको ये बे ऑफ बंगाल में मिलेंगे। So it's less frequent in the Arabian Sea. So this was your season of retreating monsoon, यानी कि वापस आना, जो विंड्स हैं वो वापस आएंगी, उसको हम सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं। सितंबर फर्स्ट वीक से शुरू होती है, मिड ऑफ दिसंबर तक पूरा ITCZ की जो लो प्रेशर बेल्ट है वो इंडियन पेनिनसुला को छोड़ चुकी होती है, और स्टार्टिंग में अक्टूबर के कुछ स्टार्टिंग 15 दिन थोड़ी सी गर्मी होती है, हीट रिलीज होती है ज़मीन से। आफ्टर दैट जो टेम्परेचर है वो एकदम से गिरना शुरू हो जाता है, नवंबर दिसंबर तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। Next is traditional Indian seasons. In the Indian tradition, a year is divided into 6 monthly season. इंडियन जो सीजन है इंडिया, अगर हम इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो इंडिया के केस में 6 सीजन्स में डिवाइडेड है, 2 महीने के लिए हर सीजन रहता है। और दिस साइकिल ऑफ सीजन्स विच द कॉमन पीपल इन नॉर्थ एंड द सेंट्रल इंडिया, मोस्टली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में फॉलो किया जाता है, वो उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की वजह से है, और इतने टाइम से जो उन्होंने वेदर को समझा, अंडरस्टैंड किया, उस चीज़ों की वजह से, उस चीज़ के हिसाब से उन्होंने वेदर को कैटेगराइज किया है। However, this system does not match with the seasons of South India, where South India और North India के seasons मैच नहीं करते हैं, क्योंकि South India में इतनी वेरिएशन नहीं है विंड्स की, इतना ज़्यादा लोकल विंड्स जो रेन विंड्स हैं, और टेम्परेचर का हमने भी देखा था कि कैसे साउथ इंडिया, पेनिनसुला इंडिया, इट्स क्लोजर टू दी कोस्ट, तो मॉडरेटिंग टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ऊपर नीचे नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेरिएशंस, डिफरेंसेस नहीं है सीजन्स के। अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर क्या क्या महीने होते हैं? सबसे पहले आपका वसंत का महीना है, जिसको चैत्र या विशाखा मंथ भी बोला जाता है। अगर आप उसको देखो तो मार्च अप्रैल का महीना होता है वो। देन इज योर ग्रीष्म, जिसको ज्येष्ठ और अषाढ़ बोला जाता है। वर्षा श्रवण या फिर भाद्रा, जुलाई और अगस्त को श्रावण का महीना बोला जाता है, और अगस्त भद्रा का महीना। श्रावण में आपको पता होगा बोलते हैं नॉन वेज नहीं खाना और ये सब, बिकॉज इसके लिए भी साइंटिफिक रीजंस हैं। जुलाई के अराउंड आपकी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। रेनफॉल, बारिश में केमिकल्स होते हैं, पानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो ब्रीड करता है, और इसीलिए बोला जाता है कि इस टाइम पे आप नॉन वेज और ऑल दीज थिंग्स यू शुड नॉट कंज्यूम, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा होता है। दिस इज आपका सावन का महीना जो बोला जाता है। देन इज अश्विना, कार्तिक का महीना होता है, अक्टूबर मंथ कार्तिक का महीना होता है। मर्गशीरा दैट इज नवंबर, पौसा दैट इज दिसंबर, माघ दैट इज जनवरी, और फाल्गुन का महीना आपका फेब्रुवरी के महीने को फाल्गुन का महीना बोलते हैं। सो दीज आर सर्टेन मंथ्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर, और ग्रिगोरियन कैलेंडर आप देख सकते हो। सीजन्स जो आपके 6 सीजन्स हैं वो वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शारदा, हेमंत और शीशरा। शीशरा इज बेसिकली काफ़ी ठंडी, हेमंता नॉर्मल दैट इज नवंबर दिसंबर, शारदा का जो होता है दैट इज सितंबर अक्टूबर। वर्षा इज अगेन बारिश का महीना जो जुलाई अगस्त, ग्रीष्म मई जून, एंड वसंत, ग्रीष्म इज यानी कि गर्मी, so ग्रीष्म इज मई जून, एंड वसंत दैट इज गुड अच्छा वेदर, दैट इज योर मार्च एंड अप्रैल। नाउ देयर वाज दिस पर्सन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फेमस पर्सन, जिनको हम बोलते हैं कोपेन। कोपेन ने कुछ लेटर्स का, कुछ सिंबल्स का यूज किया था क्लाइमेट टाइप्स को कैटेगराइज करने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए।
हर टाइप के क्लाइमेट को उसने सब डिवाइड किया था सब टाइप्स में उनकी सीजनल वेरिएशंस के हिसाब से, बेस्ड ऑन देयर रेनफॉल और टेम्परेचर के हिसाब से। उसने एस लेटर, अलग अलग लेटर्स यूज किए हैं उसने, दिस इज इंपॉर्टेंट, उसने एस लेटर यूज किया है फॉर सेमी एरिड, सेमी एरिड यानी कि बहुत ज्यादा सूखा नहीं, सेमी एरिड के लिए एस लेटर यूज किया है। बहुत एकदम ड्राई एरिया के लिए उसने डब्ल्यू फॉर एरिड रीजन यूज किया है। और फिर इसी के अंदर उसने कुछ स्मॉल लेटर्स का यूज किया है सब डिविजन के लिए, जैसे कि एफ लेटर को सफिशिएंट प्रेसिपिटेशन यानी कि अच्छी बारिश हो रही है, कम नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है, सफिशिएंट रेनफॉल को उसने स्मॉल एफ से डोनेट किया है। एम रेन फॉरेस्ट डिस्पाइट अ ड्राई मॉनसून सीजन, रेन फॉरेस्ट एरिया, ड्राई मॉनसून है, मॉनसून बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट यहाँ पे रेन फॉरेस्ट एरिया को उसने एम से डिनोट किया है। विंटर में सूखा दैट इज ड्राई सीजन को उसने स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट किया है। ड्राई एंड हॉट, सूखा और गर्म, उसने छोटे एच से डिनोट किया है। स्मॉल सी इज फॉर लेस देन 4 months विद मीन टेम्परेचर ओवर 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4 महीने से कम अगर 10 डिग्री से ज्यादा आपका टेम्परेचर रहता है तो दैट इज स्मॉल सी। और जी फॉर गैंगेटिक प्लेन्स। अकॉर्डिंगली इंडिया के क्लाइमेट को उसने 8 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यू शुड रिमेंबर दिस टेबल, दैट इज AMW. Yes, so AMW, A stands actually, capital A stands for monsoon, and M we have already seen, M stands for rainforest despite dry monsoon. So AMW stands for monsoon with short dry season, बारिश और थोड़ा सा ड्राई सीजन। ये हमारा इंडिया की वेस्ट कोस्ट में होता है, साउथ ऑफ गोवा, गोवा के नीचे जब जाओगे तो वहां पे आपको A स्मॉल m स्मॉल w का वेदर मिलेगा, मॉनसून विथ शॉर्ट ड्राई सीजन। कैपिटल A अगेन, कैपिटल A स्टैंड्स फॉर मॉनसून एंड शॉर्ट छोटा s स्टैंड्स फॉर ड्राई समर, नॉट हॉट, ड्राई समर की बात कर रहे हैं ये, तो AS स्टैंड्स फॉर मॉनसून विथ ड्राई समर। ये आपका कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु के आसपास है, जहां पे हमने देखा मॉनसून होता है पर बारिश नहीं होती है। सो देन इज AW, कैपिटल A स्टैंड्स फॉर अगेन मॉनसून एंड W स्टैंड्स फॉर ड्राई सीजन इन विंटर। सो ट्रॉपिकल सवाना जो है आपका, मोस्ट जो आपके पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का एरिया आपका AW में आता है। कैपिटल B, स्मॉल w, स्मॉल h, स्मॉल w. Now you know small w stands for dry season in winter. H stands for hot and dry season. So semi-arid steppe climate. Steppe climate, जो steppe climate होता है, सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट को BWHW बोला है। आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात हो गया, राजस्थान और कुछ पंजाब का हिस्सा। BWHW हॉट डेजर्ट, पूरा जो वेस्टर्न राजस्थान है दैट इज योर हॉट डेजर्ट। ये आई गेस W दोबारा लिख दिया, BWH होना चाहिए। CWG, कैपिटल CWNG, मॉनसून विद ड्राई विंटर इज आपका गंगा प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारी चीजें। DFC, D स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीम कोल्ड, सो कोल्ड ह्यूमिड विंटर, छोटी समर अरुणाचल प्रदेश में। एंड E इज योर पोलर टाइप, जो कि आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड। ये जो कुछ टाइप्स हैं, 8 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, और इंडिया में कहाँ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर फ्यूचर में आप कभी प्लान कर रहे हो तो एक कोपन का जो कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑफन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, सो look through it, go through it very carefully. Next is monsoon and economic life in India. Monsoon और economic life इंडिया का क्या है, कैसा है? Monsoon is that axis around which revolves the entire, सबसे जरूरी चीज monsoon एक वो एक्सिस है जिसके आसपास हमारी पूरा एग्रीकल्चर हमारा रिवॉल्व करता है। 64% जो इंडिया में है जो एग्रीकल्चर करते हैं वो बारिश यानी कि मॉनसून पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, और मेजरली ये साउथ वेस्ट मॉनसून पे डिपेंडेंट होता है। हिमालयाज के अलावा जितने भी कंट्री के पार्ट्स हैं उनका टेम्परेचर
above threshold है level to grow the crops to plants throughout the year. So except Himalayas, all the parts of the country have temperature above the threshold level. मतलब हमारा टेम्परेचर उतना अच्छा नहीं है तो मानसून नहीं होगा तो टेम्परेचर विल बी डिस्टर्ब और हम क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. और क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की रेनफॉल होती है जिसकी वजह से हम वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं. जहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जैसे कि जूट को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे हम ऐसी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जिनको एक्सट्रीम वाटर की रिक्वायरमेंट है. जहाँ कम बारिश हो रही है जैसे वीट, तो हम उन एरियाज में वीट ग्रो कर सकते हैं जहाँ हमें पता है उतनी ज्यादा बारिश नहीं होगी. सो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स अलग अलग रीजनल बारिश के वेरिएशन की वजह से हम क्रॉप्स की वेरिएशन भी कर सकते हैं. वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ब्रिंग्स ड्रॉट्स और फ्लड्स एवरी ईयर इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो रेनफॉल अलग अलग वेरिएशन है रेनफॉल की, इसकी वजह से ड्रॉट्स होते हैं, फ्लड्स आते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अलग अलग जगह पे. एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी है जो हमारी कंट्री की, वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है रेनफॉल पे. अगर बारिश फेल हो जाएगा तो एग्रीकल्चर एडवर्सली इफेक्ट होगा, पर्टिकुलरली उन रीजन्स में जहां पे इरिगेशन फुल्ली डेवलप नहीं होगा. सडन मॉनसून बर्स्ट क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन ओवर लार्ज एरियाज इन इंडिया. एकदम से अगर मॉनसून आ जाता है तो उससे भी सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया में. सॉइल इरोजन, सॉइल हमारी खराब होती है. विंटर रेनफॉल, जो अगर बारिश में सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो फार्मर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि गेहूं खराब हो जाती है, जो राबी क्रॉप्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं, और अगर रेनफॉल नहीं होगी तब भी खराब हो जाएंगी. तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब ना ज़्यादा बारिश हो ना कम हो. एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल इज इम्पॉर्टेंट फॉर राबी क्रॉप्स. जो रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन है इंडिया में, उसकी वजह से फूड की वैरायटीज अलग मिलती है, क्लोथ की वैरायटीज अलग है, घरों के जो हाउस के टाइप्स हैं इनकी वैरायटीज अलग हैं, एंड दैट इज बिकॉज डिफरेंट. जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे जनरली लोग घर इस तरीके से बनाते हैं ताकि पानी होल्ड ना करे. दैट इज हाउस टाइप, क्लोथिंग टाइप सबका अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड. Next is global warming. You know that change is the law of nature. All of us know change होता रहता है. क्लाइमेट ने भी कुछ चेंज एक्सपीरियंस किया है ग्लोबल लेवल पे और लोकल लेवल पे पिछले कुछ समय में. इट इज चेंजिंग इवन नाउ बट द चेंज इज इनपरसेप्टेबल. अभी भी चेंज हो रहा है बट हम इतना उस अच्छे से चेंज को समझ नहीं पा रहे हैं और चेंज होता रहेगा. नंबर ऑफ जियोलॉजिकल कुछ चीज़ें हुई हैं, एविडेंस हुए हैं जो हमें समय के साथ साथ बताते हैं. लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ वॉज अंडर आइस कवर. जैसे हमने फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था ये किस तरीके से पूरा जो वर्ल्ड था वो आइस से कवर था, और अब आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ रहे हो इतना कुछ. नेचुरल कॉजेज के अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं, जैसे कि हम इतने लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, पॉल्यूटिंग गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ग्लोबल वार्मिंग के लिए. यू माइट हैव, आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुना होगा. ग्लोबल वार्मिंग के टाइम ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ नहीं होता, जब गैसेस ट्रैप कर लेती हैं जिसकी वजह से जो हीट है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो वापस नहीं जा पाता. हमने हीट बजट के बारे में पढ़ा, हीट बजट में पढ़ा था हमने कि किस तरीके से, हाँ हीट बजट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जितना भी रेडिएशन अर्थ को रिसीव होता है वो सारा का सारा वापस भेज देता है अर्थ. बट देन ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वो ट्रैप हो जाता है, हीटिंग, ज़्यादा गर्मी हो जाती है हमारे अर्थ पे. द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग. पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है. कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो ह्यूमन बींग्स ह्यूमन एक्टिविटीज से प्रोड्यूस हो रही है वो एक मेजर कंसर्न है. ये जो गैस है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है जब आप फॉसिल फ्यूल्स जलाते हो, कोल जलाते हो, पेट्रोल जलाते हो, उसकी वजह से रिलीज होती है और ये ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है. अदर गैसेस जैसे कि मीथेन हो गया, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गए, विच आर प्रेजेंट इन मच स्मॉलर कंसेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर. ये सारी मिलके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है. सो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर सर्टेन ग्रीन हाउस गैसेस. ये जो गैसेस हैं ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को, दीज गैसेस आर बेटर अब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो आर मोर इफेक्टेड दैन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा
एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को वापस नहीं जाने देती हैं, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। दीज गैसेज हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो आइस कैप्स हैं, जो आइस है वो पिघल रही है, माउंटेन के ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और ओशियंस में अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है, पानी का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है। जो सरफेस टेम्परेचर है अर्थ का पिछले 150 साल में इंक्रीज हो गया है। इट इज प्रोजेक्टेड दैट हर साल बाय द ईयर 2100 तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। द राइज इन टेम्परेचर, इसकी वजह से काफी ज्यादा चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ जाएगा तो आपकी जो कोस्टल एरियाज, पानी कोस्टल एरियाज में जो कोस्ट के पानी के आसपास की जो शहर हैं, जो जगह हैं, वो डूब जाएंगी, पानी में डूब जाएंगी। ग्लेशियर्स और सी आइस ड्यू टू वार्मिंग मेल्ट हो जाएंगे। करंट प्रिडिक्शन के हिसाब से ऑन एन एवरेज जो सी लेवल है वो 48 सेंटीमीटर्स तक बढ़ जाएगा 21st सेंचुरी तक, एंड ऑफ 21st सेंचुरी तक। दिस वुड इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एनुअल फ्लडिंग, हर साल फ्लड्स आएंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजीजेस जैसे कि मलेरिया, पानी जितना ज़्यादा पानी मलेरिया बढ़ेगा। क्लाइमेटिक बाउंड्रीज शिफ्ट हो जाएंगी। कुछ रीजन्स बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, कुछ रीजन्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, वेटर हो जाएंगे। एग्रीकल्चर पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, ह्यूमन पॉपुलेशन भी शिफ्ट हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। व्हाट वुड हैपन अगर इंडियन सी कोस्ट, मान लो इंडियन सी कोस्ट का जो हमारे पेनिनसुला के पास जो वाटर है वो 50 सेंटीमीटर से बढ़ जाए, ऑलमोस्ट हमारा पेनिनसुलर इंडिया पानी के अंदर हो जाएगा। स्पेशली जो ईस्टर्न कोस्ट, इस तरफ तो वेस्टर्न घाट्स है, स्पेशली जो ईस्टर्न कोस्ट एरिया है, इट विल सोक, डूब जाएगा पानी के अंदर। सो वी डोंट वांट ग्लोबल वार्मिंग, वी डोंट वांट आवर क्लाइमेट टू चेंज। ऑल्दो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हम रेट को कम कर सकते हैं। हम जिस स्पीड से ये हो रहा है उस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी बेटर कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द क्लाइमेट चैप्टर। इन नेक्स्ट क्लास वी वुड स्टार्ट विद अनदर चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज गो थ्रू ऑल द वीडियोज अगेन। इट इज अ बिग चैप्टर, इट इज अ थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज काफी ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।